Good morning, dear student. Today we are one more time here. I hope you all are doing well and you just have been focusing on your study as well. Hope the phase that we as a nation of this COVID-19 we are facing passes quickly and we all will live towards a normal life. Today we are going to look about poem number 2, that is Fire and Ice. Dear student, again the poem is written by the Robert Frost. As we have earlier talked about him, that Robert Frost is a kind of poet who generally took a very simple incident or element from the life and tried to explain the most important lesson or to express most important message of life. In this poem, Fire and Ice, we are going to see the similar kind of things by Robert Frost. In this poem, Robert Frost set very brilliant example, or we can say ironical example, that how the world will end with fire or ice. या फिर fire and ice both. But here the poet is very confirmed that the world will going to end one day. But of what? Either it could be fire or it could be ice, or rather he said that both of the things that cause the world to an end. Actually, poet is convinced about the ending of world, but he has expressed two options in front of us. Here, both the word fire and ice should not be taken as it is printed. जैसे लिखे गए हैं ठीक वैसी तरह से उसको नहीं लेना. It should be taken with its implied meaning. For what purpose he has written. For what purpose he has written. When Frost wrote the poem, scientific theories about the sun exploding and we can say as heat is getting higher and higher, there will be emission of CO2, air will get polluted, the earth surface heat will increase, the plants and water bodies are going to drought. And this is how the fire or the heat can end up the world. On the contrary, he also tells us that the ice, when it is being frozen, it gradually clutches all and everything that exists on the earth will fill with the ice or covered with the ice. And there was
or there will be nothing to eat. And this is how it could be ended. But dear student, whatever I have explained you right now, it is not the exactly case as poet tries to explain us. पोएट जिस तरह से हमें एक्सप्लेन करना चाहता है ये ठीक उसी तरह का नहीं है. ये तो एज इट इज जैसे लिखा है यहाँ पे वैसा हमने अंडरस्टैंड किया. लेकिन व्हाट इज इम्प्रोवाइज्ड मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज द हिडन मैसेज बिहाइंड दिस? Actually, here the fire is being correlated with emotion, passion and desires of human being. फायर का मतलब यहाँ पे आपको पैशन एंड डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग उसके साथ आपको मैच करके देखना है. That will lead the human race towards the end. And I should be related with the power and hatred, drina, tirashkar. Poet says that both are equally capable to destroy the earth, or we can say human race. Because once a man is being driven by the full fledged of desires, he couldn't or she couldn't see anything what is right and what is wrong. जब कोई आदमी अपनी डिजायर के वश होके कुछ पा लेने की, कुछ प्राप्त कर लेने की कोशिश करता है, तब वे क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझ घुमा देता है और वो सिर्फ अपना बेटर करने के लिए दूसरों का भी नुकसान करता जाता है. दैट इज कॉल्ड passion, desire, that is related to fire, and that will end the world. On the second hand, on the second stanza, the poet again says us that hatred is also kind of destructive emotion, though it is come at cold. Nobody can understand कि आदमी सामने जो आपके बैठा है वो आपसे जो बात कर रहा है क्या अंदर से आपसे जलता है, आपको नुकसान करता है, वो पहचानना बहुत मुश्किल है और वो धीरे धीरे आप लोगों को नुकसान पहुंचाता जाता है. He goes on to say that ice यानी hatred is just as destructive as fire, मतलब desire. गुस्सा उतना ही नुकसानदेह है जितना की आपकी डिजायर. इट इज सफिशिएंट और सफाइस, सफाइस का मतलब जो लास्ट में वर्ड दिया है सेकंड स्टैंजा लास्ट लाइन लास्ट वन, दैट इज मींस टू बी सफिशिएंट. मतलब बोथ आर द टर्म्स आर सफिशिएंट टू एंड द ह्यूमन रेस. In short, if someone asks to Robert Frost, अगर कोई रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पूछता है कि which is bigger in these two, fire or ice, which is our enemy for the human beings, हमारा दुश्मन बाहर कोई नहीं है, हमारे भीतर है. एक हमारी लस्ट डिजायर और दूसरा हमारा जेलसी हेट्रेड. These two things, if get together, it will just crush you in between. ये आपके लिए अच्छा नहीं है. Human will eventually destroy themselves by the powers of these two. If we want to save ourselves and the world, we have to stay away from these two, fire and ice. It should not be too much. I know that there is needed of desires in life to live, but it should not be to that extent
that can cause others, that can destruct others. हमारी डिजायर इतनी भी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि हमारी डिजायर से दूसरों को नुकसान हो. The same thing with आइस. आइस में भी है, हेट्रेड में भी ऐसा है. आइस मतलब हेट्रेड. इतनी भी घृणा नहीं होनी चाहिए कि हम दूसरों को नफरत करते करते हम अपने आप से नफरत करने लगे और फिर एक समय ऐसा है कि वी लॉस द डिजायर ऑफ लिविंग लाइफ. तो डियर स्टूडेंट, ये जो पूरी की पूरी पोएम आपको बताई गई है, इन वेरी फर्स्ट स्टैंजा वी आर बीन एक्सप्लेन्ड दैट some say the world will end in fire, some say in ice. कोई लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा, that is desire, lust, passion. And some say that in ice, कोई कहता है कि ये hatred से होगा, नफरत से होगा. From what I have tasted of desire, a poet यहाँ पे उसकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि जैसे मैंने डिजायर को महसूस किया है. टेस्टेड मतलब चाखना यहाँ पे नहीं होता है, महसूस करना. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. मुझे लगता है कि जो लोग फायर की ओर है उसी की ओर मैं जाऊंगा, क्योंकि हमारी डिजायर हमारी कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ती है तभी डिस्ट्रक्टिव रूप लेती है. एंड इन द सेकंड स्टैंजा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दुनिया को दो बार नुकसान उठाना पड़े, पेरिश PRISH, पेरिश, दो बार नुकसान उठाना पड़े, देन आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. तब दूसरी बार आई थिंक, पोएट कहता है कि आइस से दूसरी बार भी दुनिया का अंत हो सकता है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. जो आइस से डिस्ट्रक्शन होगा वो भी इतना ही सफिशिएंट होगा जितना डिजायर हेट्रेड से होगा. डियर स्टूडेंट, ये जो हमारी पोएम है, इस पोएम के अंदर कुछ लिटरेरी डिवाइसेस है. लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर अगर हम पहली लाइन देखें, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो यहां पे आपको मेटाफर दिखेगी, क्योंकि वर्ल्ड का यहाँ पे फायर से एंड होना, इसमें जो वर्ड फायर है एक्चुअली इट सिंबलाइजेस विद द लस्ट एंड डिजायर. फायर इज सिंबलाइजेस फॉर द लस्ट एंड डिजायर. और ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन है. डियर स्टूडेंट, याद रखना, डायरेक्ट कंपैरिजन है. फायर जो शब्द है वो लस्ट या डिजायर के लिए यूज किया गया है. दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अ मेटाफर. नाउ सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस. अगर ये दोनों लाइन एक साथ देखी जाए तो यहां पे हमारी सबसे पहली लिटरेरी डिवाइस बनती है रिपीटेशन. रिपीटेशन का मतलब यह होता है कि कोई भी पोएम की लाइंस के अंदर इनिशियल स्टेजेस में दो कॉन्सेक्यूटिव वर्ड्स एक साथ रिपीट होते हो. पहली लाइन में सम से पहला शब्द, दूसरी लाइन में पहला शब्द सम से, ये दोनों सेम वर्ड है, रिपीटेडली यूज हुए हैं. दैट इज व्हाई इट इज रिपीटेशन. इसी दो लाइन के अंदर दूसरी एक फिगर ऑफ स्पीच बताई गई है, जो अभी भी मैंने आपको बोला कि फायर इज सिंबलाइज विथ लस्ट एंड डिजायर, और दूसरा जो आइस है इट इज सिंबलाइज विथ हेट्रेड. तो ये भी डायरेक्ट कंपैरिजन, मेटाफर भी इसमें इस्तेमाल की जा सकती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें एक मेटानेमी नाम की भी फिगर ऑफ स्पीच बनती है. कैसे बनती है? मेटानेमी तब बनती है जब फायर एक्चुअली सिंबलाइज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड फायर सिंबलाइजेस हेट्रेड, इंटेंसिटी.
तो ये एक किस्म की मेटोनिमी भी बनती है। इसके अलावा जो चौथी लाइन है पहले स्टांजा की, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसके अंदर एलिट्रेशन का इस्तेमाल होता है। एलिट्रेशन यानी रिपीटेशन साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, जिसमें आप फेवर FAVOUR उसका स्पेलिंग देखें एंड फायर का स्पेलिंग देखें। दोनों में एफ कॉन्सोनेंट साउंड जो रिपीट होता है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव वर्ड है, एक के बाद एक फ्यूज होने वाले शब्द है। यानी रिपीटेशन की डेफिनेशन आपको दिमाग में आ गई होगी कि भाई एक ही लाइन में दो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स की शुरुआत का जो साउंड होता है अगर वे सिमिलर है, कॉन्सोनेंट है, तभी हमारा वो रिपीटेशन कहलाएगा। आखिर में इस पोएम में आपको एक और लिटरेरी डिवाइस देखने को मिलेगी जहां पे बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ये जो स्टेटमेंट है मतलब सेकंड स्टांजा की फर्स्ट लाइन, तो इसमें आपको पर्सोनिफिकेशन बताया गया है, क्योंकि बट इफ इट, यहां पे जो ईट वर्ड है, इट पर्सोनिफाइज द अर्थ। समझ आ रहा है? ये मतलब यहां पे किसी को व्यक्ति का अर्थ तो इस तरह से एंड होने वाली नहीं, वो डाई नहीं होती है, अर्थ मरती नहीं है, रिफॉर्म होती है ना। तो यहाँ पे मरना किसकी प्रकृति है, किसकी क्वालिटी है? ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, राइट। तो ह्यूमन क्वालिटी किसी नेचुरल थिंग को दिया गया है, किसी चीज को दिया गया है, मतलब अर्थ को, तो ये पर्सोनिफाई है। एंड यहां पे हाइपरबोला भी है। कैसे? There is exaggeration in saying that the world will perish twice. यहां पे जो वर्ड ट्वाइस लिखा है, पेरिश का मीनिंग मैंने आपको बताया कि भाई डाई होना, मरना, खत्म होना, ठीक है। अब यहां पे ट्वाइस शब्द लगा के उसको एग्जैजरेटेड बता दिया, ज्यादा। अब कोई भी व्यक्ति है वो एक ही बार मर सकता है, दो बार नहीं, है ना। तो ये एग्जैजरेटेड है। तो एग्जैजरेटेड जब भी यूज होता है तब उसको हम हाइपरबोले लिटरेरी डिवाइस मानते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट, ये पोएम जो अभी अभी हमने लर्न की है, स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन एंड ओवरऑल डिस्कशन अबाउट द थीमेटिक कंसर्न्स एंड फिगर ऑफ स्पीच, अब आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, तैयार करिएगा, रेफरेंस मटेरियल में से इसके क्वेश्चन आंसर्स भी तैयार करिएगा, राइट। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे home and keep preparing for your next year. Thank you very much.